Hey guys, I don't know if you guys know, I'm sure you guys do not know कि भाई मैंने अभी 5 सेकंड पहले पॉडकास्ट शुरू किया था, बट मैंने चेक नहीं किया कि मेरे लैपटॉप में बैटरी नहीं है। अभी भी 10% बैटरी है, चार्जिंग पे लगा पड़ा है। एंड आई होप टू रैप दिस पॉडकास्ट अप बिना इसके बंद हुए। स्पेक्स मुझे निकाल देना चाहिए, शायद ग्लेयर आ रहा होगा आँखों का। सो कैसे हैं आप? मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आजकल पॉडकास्ट शूट करते हुए। आई डोंट नो इफ़ यू एनीबडी नोज दिस अबाउट मी दैट आई हैव ऑलवेज बीन लिंक्ड और you can say I linked to cameras indirectly. First reason is of course because of my career and what I have done in my life as a profession, which is acting. Second is my this weird knack of finding ways to express my feelings and what goes inside my heart. And I started writing due to that, and that's the way of expression I chose via random paragraphs and later on some small stories, scripts, you can say. And then when that happened, this desire and then this inspiration also showed up, and the inspiration to shoot something, and that's when the cameras came into the picture. And I felt the need to direct it because there was no one else to direct it, and I had to operate the camera as well because there was no one to operate the camera as well. We could only rent the cameras, but we could not hire a DOP. We tried to have a meeting with a couple of people, but they were too stuck up, to get our ideas, and my way of doing things is pretty abstract. I don't It doesn't sit well with the people who are normal or maybe who try really very hard to understand, to make sense out of things anyway. So that's how I started, operating and figuring out cameras on the job, and became a DOP by accident, just like how I started directing by accident. Primarily I had written the script, to express myself, and then secondary was for me to act in it, but I could not do that, so I chose my best friend Lavin to perform, and whenever I would write and try to create it. Definitely I had to be behind the camera, and Lavin had to perform. So that's how I kept, I kept becoming more fascinated, with cameras. And why am I giving this random long explanation is because I've just recently got this camera with me, the one I'm shooting with, and I also have a new lens with which I'm trying to shoot right now. And I cannot explain, touchwood, that how excited and how inspired I am, and I spend a lot of my time in the day, with the camera, figuring out and trying to capture, photos or small snippet videos. And so I think I'm super grateful for that, and I feel everything has a time, right time, and this was a time for me to get my hands on one, and to to evolve as an artist, and to find a deeper dimension within my own way of expressing, and with my own style of whatever you call art. So कभी कभार ऐसा होता है कि मैं लेटा होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई ये मन में बड़ी तेज़ बात आ रही है, इस बात को मैं पॉडकास्ट में बोलता हूँ अभी, बट वो पॉडकास्ट डिले होता है, कुछ और काम आ जाता है, मैं कुछ और करता रहता हूँ, और वो पॉडकास्ट उस मोमेंट में बनता नहीं है। और जब मैं फाइनली पॉडकास्ट बनाने बैठता हूँ, सारी बातें मेरे मन में आती हैं जो मैं कहना चाहता था, कभी कभार आ जाती हैं। आई थिंक यही ब्यूटी है शायद बातों की। कल या परसों मैं बहुत ओवरवेल्म था, पता नहीं यार, मैं होता रहता हूँ ओवरवेल्म्ड।
शायद ज़िंदगी का दूसरा नाम ही भी ओवरवेल्म होना है शायद। ज़िंदगी का नाम नहीं बोलूँगा, समाज में जीने का नाम एक्चुअली में ओवरवेल्म्ड होना है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे जब बादल छट रहे हैं ना, मुझे एहसास हो रहा है कि एक आर्टिस्ट बहुत ही नोबल बीइंग होता है और वही सेवियर है आई थिंक इस पूरे समाज का। ये समाज तो भाई डूम्ड है, और आर्टिस्ट आर द रियल हीरोज नाउ एनी फॉर्म ऑफ आर्ट यू कैन से। स्कल्पटर जो स्कल्पचर पे जो काम करते हैं, जो भी बोलो उसको, मूर्ति बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, पॉटरी, डांसिंग, म्यूज़िक तो भाई रूहानी चीज़ है, फिल्म मेकिंग, सो मैनी लाइक एंडलेस फॉर्म्स ऑफ आर्ट यू नो। एंड आर्ट से बड़ा एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, और मुझे सबसे ज़्यादा नोबल ये भी लगता है, सबसे नोबल म्यूज़िक एंड डेफिनेटली परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्टिंग भी मानता हूँ मैं, सबसे रूहानी काम है वो। खुद के साथ में वो तुम ही इंस्ट्रूमेंट हो, और खुद के साथ में ही वो यू कैन से वार्तालाप है, खुद के साथ में ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, खुद ही के साथ में तुम ही इंस्ट्रूमेंट हो, तुम ही सब कुछ हो, खुद ही के अंदर झांकना पड़ेगा। कितना भी बड़ा सीन किसी ने लिखा क्यों ना हो, वो आएगा तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे जीवन में से ही आएगा, तुम बाहर से खींच के कहीं और से ला नहीं सकते। दुख तुम्हारा होगा जो बाहर दिखेगा, खुशी तुम्हारी होएगी। इससे ख़तरनाक पावरफुल चीज़ और क्या होएगी भाई। और कोई तरीका नहीं है इस बात को जताने का, ये सबसे बड़ी क्रेज़ी बात लगती है मुझे इस आर्ट फॉर्म की। और मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है कमर्शियल दुनिया से। मैं इनकेपेबल हूँ कमर्शियली चीज़ों को समझने के लिए, और मैं इसको अपनी क्वालिटी नहीं मानता हूँ। और मैं स्टार्टिंग से इस तरह चीज़ें करता हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं वो साथ में रहना चाहेंगे, करना चाहेंगे। मैक्सिमम लोगों को अगर मेरे कोई मीटिंग में बैठा दो किसी के साथ में, मैं कन्वे नहीं कर पाऊँगा, चाहे मैंने अच्छी कहानी लिखी भी क्यों ना हो, कि ये अच्छी क्यों है, क्योंकि मैं बातों में उनको, मुझे बेचना नहीं आता। आई एम नॉट अ हसलर लाइक दैट। लॉट ऑफ पीपल यू कैन सी सो मैनी, आई वोंट इवन से बिलो एवरेज, दे आर लाइक बैड फिल्म्स। सो मैनी बैड फिल्म्स आती हैं साल में, स्पेशली हमारे इंडियन सिनेमा में। वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो लोग वो कहानियों को बेच रहे हैं, फाइनेंसर को जो पिच कर रहे हैं, वो सब लोग घाघ लोग हैं। दे नो हाउ टू पिच इट, दे आर बिजनेस मैन, दे आर सेल्स मैन, एंड दे नो हाउ टू क्रैक दैट थिंग ऑन दैट मीटिंग। इस रियल आर्टिस्ट में, मतलब मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाकी कोई भी सच्चा जो आर्टिस्ट होता है वो इन चीज़ों में इतना माहिर नहीं होता है। वो सच्चा इसलिए उसकी आर्ट भी अच्छी है, वो इन बातों में इतना होता नहीं है। हाँ, अगर अच्छी ब्यूटीफुल बात ये होती है कि जो सच्चे आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ में काफ़ी अच्छे एक्सीडेंट नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं कि जिसको कहानी देने आना चाहते हैं वो इंसान में थोड़ी गहराई होती है, और वो उनके दिल को परख लेता है कि ये बंदा भाई भगवान का बंदा, ये अच्छा ही करेगा जो भी करेगा, और इसके साथ में काम करके मेरा भी भला हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम सबको अपनी फ़ंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए, और वो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही है, हमारा बेहतरीन, सबसे अच्छा, प्योर और सबसे अच्छा वर्जन बनना। और जब आप अपना सबसे अच्छा वर्जन बनते हो ना, सबसे प्योर फॉर्म अपनी खुद की ढूंढते हो, नेचुरली वो जो प्योर फॉर्म है वो इस सृष्टि के साथ में इन सिंक है, वो यूनिवर्स है, वो गॉड है। तो जब हम अपने खुद के करीब आते हैं, अपने सच के करीब आते हैं, तो हम भगवान के करीब आ जाते हैं, हम भगवान को देख लेते हैं, जान जाते हैं अपने अंदर झांक के। और हमारे उस काम से, अपने ऊपर जब हम काम करते हैं, उस सच्चाई के ढूंढने से पूरी की पूरी दुनिया का एक निर्माण, और पूरी की पूरी दुनिया का एक भला हो जाता है, यू कैन से। एंड आई ऑल्सो फील दैट a human being's fundamental and primary purpose is same. It is the same, like it is not different from the purpose of this world and this existence. It is not separate, and it cannot be like कि मैं ये चाहता हूँ बट मुझे नेचर के लिए यूज़ करना चाहिए, then you are not in sync, you are still deluded, you are not in you are missing the point. मुझे लगता है कि सारी आर्ट का मीनिंग यही है कि जब एक इंसान किसी मीडियम के थ्रू अपने मन की बात कहने की कोशिश करता है, बहुत ही यूनिक वे में, एक सच को टच करता है, एक ट्रूथ की डायमेंशन को छूता है, एंड आई फील वो आर्ट होती है। बहुत ही आर्ट कोई कैटेगरी नहीं है,
एक नॉर्मल जॉब पर्सन भी आर्टिस्ट हो सकता है बाय हार्ट. उसकी अप्रोच टूवर्ड्स हिज असाइनमेंट्स एंड हिज ड्यूटीज़ एंड how he conducts himself, he or she conducts himself or herself. And so art is actually a state. It's a state, and that can be tapped by any being, any breathing existing being. And isn't that fascinating and beautiful? पूरी दुनिया आर्ट को इस तरह देखती है कि जैसे कि भाई कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है और वो उसको इस तरह ढूंढ चेज़ कर रही होती है जैसे कि कोई कुत्ता अपनी पूंछ को चेज़ कर रहा होता है गोल गोल घूमते हुए. मैं अपनी मम्मी से आज एक अजीब सी बात नहीं है, काफ़ी गहरी बात है. रैंडमली कुछ हुआ, पता नहीं आईफोन की कोई टेंडेंसी है, वो कभी कभार कोई तो सजेशन भेज देती है, दिस ईयर, दैट लास्ट ईयर, और मे बी इन 2016-17 दिस मंथ दिस डे यू आर डूइंग दिस, ऐसा कुछ करती है कोई बार, वो आईफोन करता है. सॉरी, मुझे वो आया. एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन सम ऑफ द रैंडम फोटोज फ्रॉम द पास्ट इन माई फोन एंड आई लुक्ड एट माई सेल्फ एंड आई फेल्ट लिटिल काइंड ऑफ लिटिल सैड फॉर माई सेल्फ इन अ वे यू कैन से. जब हमारे साथ में चीज़ हो रही होती है मैं पता नहीं होता, मुझे एहसास हुआ कि भाई पता नहीं कितने सालों से, 2017 जितने भी सालों से, मुझे लगा कि मैं किसी खोज में निकल गया था और मैं पता नहीं क्या ढूंढता जा रहा हूँ. और ऐसा लगा कि मैं को बड़े होने तक का रास्ता पता था कि बड़ा होना है, स्कूल जाना है, फिर ये करना है, कॉलेज जाना है, स्ट्रीम चुननी है, ये करना है, मेहनत करना है, जो भी फील्ड में जाऊँगा ये करना है, वो करना है और आगे बढ़ना है, पैसे कमाए. एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आया मेरे 25-26 के टाइम पर, 25 स्पेशली, तो मुझे समाज का एक असली सा रूप दिखने लगा, क्योंकि मैं काफ़ी करीब समाज का बंदा बन गया था, अंदर घुस चुका था और मैं लोगों से डायरेक्टली डील कर रहा था. तो मेरा बबल बर्स्ट हुआ बहुत बड़ा तगड़ा, और मुझे लगा भाई इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यही है, इसके लिए बस बड़े हो रहे थे हम, इसके आगे कुछ है ही नहीं. तो मुझे लगा मेरा एडवेंचर वहाँ ख़त्म हो गया लाइफ का और इसके आगे कुछ भी नहीं है. इस फीलिंग के साथ में एक बहुत ही ख़तरनाक ड्रेड आया, एक उदासी आई बहुत ही ख़तरनाक. मैं उसको कभी भी मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता. और सब कुछ मुझे मीनिंगलेस सा लगने लग गया, कि ऐसा लगा कि एक इंसान बस हाँ, कभी देखा आपने गिनी पिग एक बड़े से व्हील पे भागता रहता है, उसको उस पर छोड़ देते हैं, उसका टाइम वेस्ट होता है इसके ऊपर, मतलब वो अपने आप को बिज़ी कर लेता है उस व्हील पे भाग भाग के. उसे लगता है कहीं जा रहा है, बट वो कहीं नहीं जा रहा होता, वो व्हील उसको बिज़ी रखता है. मुझे लगा भाई सब ने अपने आप को बिज़ी करा हुआ है. और देखा मैंने, मेरी दादी गुजरी थी मतलब बहुत पहले, तो मुझे लगा मेरी दादी भी गुज़र गई थी दुनिया से, और लोग चले जाते हैं दुनिया से, और ज़िंदगी में लोग उस समय उसके बारे में ज़िक्र करते हैं, याद करते हैं, बाद में लाइफ वापस से उसी चक्के पे चढ़ जाते हैं वो लोग. ईश्वर ने हमको बनाया है शायद इसी चीज़ के लिए तो नहीं बनाया होगा. आई रिपीट अगेन, मैं इन चीज़ों को खारिज नहीं कर रहा हूँ. इन चीज़ों का होना और इन चीज़ों से हमारी ड्यूटीज़ को निभाना, ये हमारा धर्म और कर्म है. ये टॉपिक दूसरा है, इसकी समझ आने में मुझे बहुत वक्त था, 6-7 साल लगने थे मुझे उस समय. ये समझ मुझे अब घूम के पूरे आग के बाद नहीं, बट उस बच्चे लड़के को नहीं थी ये समझ जो मैं था तब, क्योंकि पैसा तो मैं तब बहुत कमा रहा था, मैं वो भी कर रहा था जो कि मैं करना चाहता था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मैं अपने रास्ते पे था, आगे बढ़ता जा रहा था. तो ये फीलिंग मेरे मन में क्यों आई, इस बात का मैं कोई जवाब नहीं जानता हूँ. शायद ये कार्मिक बातें होती हैं किसी पिछले जन्म की, पता नहीं मुझे, मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं है. बट ये डेफिनेटली कोई, हम सब के अलग अलग पाथ लिखे होते हैं. कई लोगों की काफ़ी सीकिंग स्पिरिट होती है. मैं बचपन से नहीं, बड़े जैसे मैं होने लग गया, मैं काफ़ी सीकिंग टाइप रहा हूँ, सच को ढूंढने वाला. सच से ज़्यादा मैं जैसे ही मैं बड़े होने लग गया, मैं एक चीज़ ढूंढता आया हूँ, वो ये था कि वो क्या करेक्ट वे है जिससे एक इंसान को जीना चाहिए. फलानों को आप ट्रस्ट करना शुरू कर दो, उसको 5 दिन तक ट्रस्ट करो, 6वें दिन उसने कोई ऐसी हरकत करी होगी तुम्हारा दिल टूट जाएगा, अरे यार मैं तो उसको ट्रस्ट कर रहा था, ये तो भाई मैं सोचता था कि ये मेरा हीरो है, ये मेरा लीडर है, बट इसके बारे में मालूम पड़ रहा है तो एकदम इसने शैलो हरकत कर दी, तो ये तो मैं इसको फॉलो करूँगा, मैं भी गड्ढे में गिरूँगा. तो मैं ऐसे एक अपने गुरु को ढूंढ रहा था वीकेंड से, तो मैंने खुद ही के गुरु बना लिया छोटी उम्र में. मैंने ड्रैगन बॉल जी से उठा के गोकू को अपना गुरु बना लिया, उससे उसकी वैल्यू सीखी मैंने. ब्रूस ली जी दुनिया में नहीं, मैं उनको जी अभी बोलता हूँ, पीपल कैन लाफ इफ़ दे वांट टू.
मैं उनको ब्रूस ली जी कहता था। ब्रूस ली जी के बारे में मैं जाके साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट आउट निकालने लग गया अपनी पॉकेट मनी के सेव्ड मनी से। ये साइबर कैफ़े के ज़माने की बात है, तब स्मार्टफ़ोन का तो स्मार्ट नाम का किसी ने सुना भी नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ होता है दुनिया में। सोनी एरिक्सन वगैरह चलते थे, वो भी बहुत ही रिच फैमिलीज़ में एक ही इंसान के पास में होता था फ़ोन, वो भी हेड ऑफ़ द फैमिली, पापा के पास में होता होगा घरों के, वो भी वेल टू डू फैमिली के पापा के पास। मेरे पापा के पास तो रिलायंस था। एनीवे उस ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ। तो मुझे अभी भी याद है, 30 रुपये का था, 30 रुपये का 1 घंटा था, सॉरी 45 रुपीज़ का 1 घंटा था। और शायद 20-25 रुपये का आधा 1 घंटा ऐसा कुछ था। तो बड़ा महंगा लगता था भाई, बहुत महंगे होते थे पैसे, मतलब बहुत महंगे लगते थे। मेरे पे पैसे तो होते नहीं थे। ब्रूस ली जी के मैं वहाँ पे प्रिंट आउट निकालता था और सेव करता था। कितनी अहमियत थी उनके लिए, उन चीज़ों की मेरे मन में यार, मैं समझा नहीं सकता इस बात को। सिंपल सी बातें, ये बच्चे कोई समझेगा नहीं कभी भी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है इस बात में, ये दौर को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये वक्त आ चुका है, मैं इसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। बट मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट भी मांगता हूँ कि मैं उस, इसीलिए मेरे दिल में एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी आम बच्चों में, इन लोगों में कभी नहीं आएगी। क्योंकि वो हम जो जिस वक्त से मैं आ रहा हूँ वो वक्त बहुत प्योर था। चलो मैं तो अपने वक्त को प्योर बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारा वक्त तो, उस समय कहते थे हमारा वक्त तो फिर भी बहुत फास्ट है उनके हिसाब से। उनका वक्त जो था वो और प्योर था, और मेरे दादा दादी का तो और ही प्योर था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जाके वो साइबर कैफ़े से वो नोट्स वगैरह इकट्ठे करता हूँ, क्योंकि मैंने उनको अपना गुरुजी मान लिया था और उनके बारे में मैं फॉलो करने लगा था कि ये बंदा मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो मैं उनको देख के ऐसा लाइट मेरे लाइट हाउस बन गए वो। उनको देखते देखते मैं अपना सफ़र तय करने लग गया। किसी अच्छे इंसान की और किताब पढ़ ली, रॉबिन शर्मा की किताब पढ़ता था मैं, उनको भी अच्छा मानता था मैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जीवन में खुद का कन्विक्शन जागा, खुद की एक खुद पे ट्रस्ट आने लग गया कि मैं इस जंगल जैसी दुनिया में अपना रास्ता निकाल सकता हूँ। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम थे। मैं कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता था। मुझे पता था कि ये बंदा कोई भी शालो घटिया हरकत कर रहा है, मुझे ये नहीं करनी है। और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप कर लिया था अपना, और ये सब मेरी इन ब्लेसिंग्स की वजह से है। और ये टॉपिक की शुरुआत मैंने इसलिए करी थी कि मैं बातों में इतना बह गया, मैं ये भूल गया कि मैं टॉपिक पे आया क्यों था। सो हाँ शायद, एनीवे हाँ मैंने ये बात की, मैं भटक गया था 25 साल यहाँ। तो अपने पाथ क्रिएट होने लग गए, चीज़ें बहुत चीज़ें समझ रहा था मैं। बट यार ये सब बातें तो एक बच्चे के मन में थी, टीनेजर, फिर बाद में अर्ली 20s, 25 में जब मैं यंग मैन, पूरा अपने आप को समाज में यंग मैन की तरह देखने लग गया। मैं मन से तो बच्चा ही मानता था अपने आप को। तब मुझे हिट हुआ कि भाई मतलब कि ये जो अभी जो लाइफ चल रही है जवान मर्द वाली, अब ये दिस इज़ इट, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ नया नहीं होगा, मतलब कि कॉलेज का ग्रेजुएशन जैसे कुछ नया नहीं होगा, या फिर मैं नई चीज़ में स्टेप इन नहीं करूँगा, यही होता रहेगा, उसके नए वर्जन आते रहेंगे। शो कर रहा हूँ तो मूवी करूँगा, और पैटर्न वही होगा, पैसा आएगा, कहीं इन्वेस्ट होगा, घर बन जाएगा, फिर काम पे जाओ और घर आओ। तो स्कूल में थे तो पता था कि 12वीं तक स्कूल जाना है, उसके बाद में थोड़ी सी चेंज, 12वीं नहीं, 6 में तो सोचते थे 8वीं तक स्कूल जाना है, फिर पैंट मिलेगी, फिर थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाएगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ये मिलेगा। 10th में तो बोर्ड आएंगे तो फिर थोड़ी छुट्टियाँ मिल जाएंगी, फिर अकेला सेंटर में जाके बोर्ड देना। नए नए एक्सपीरियंसेस थे। 10th के बाद में 11th में नए कपड़े लेंगे, नए शूज़ शॉपिंग करेंगे, क्योंकि कॉलेज में आना खुद ट्रैवल करके, थोड़ी एक नया फेज़ आया। उसके बाद में बाकी बच्चे सोचते थे अरे उसके बाद में स्ट्रीम कौन सी लेंगे, बाद में कोई लोग सोचते जॉब करेंगे, किसी को एनिमेशन कर रहा था मेरे दोस्तों में से एक को कॉलेज में। मेरे लिए था कि मैं अपने आप तब फिगर आउट कर रहा था कि मैं कैसे रास्ता बनाऊंगा अपना आगे। तो खुद पहला पैसा चेक कमाना, ये बड़े हाई थे। बट 25 साल की उम्र में आने के बाद में मुझे लगा आप कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो मेरे मन में जो ड्रेड है सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ये मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। एंड फिर मेरे जीवन में मेरे बुद्धिस्ट गुरु आए, बुद्धिज़्म आया, एंड तब मेरे को जवाब मिलने लग गए। बहुत स्लोली जवाब मिले मुझे, ऐसा नहीं कि मैं मिला और फुल मूवी की तरह जवाब मिल गया, मेरी ज़िंदगी चेंज होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड
तो मैंने वो फ़ोटोज़ देखी आईफोन में, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो फ़ोटोज़ देखी तो मुझे दुख लगा। मैंने बोला अरे यार, मैं तो बड़ा ब्रोकन लग रहा हूँ, लॉस लग रहा हूँ। एक ही जगह पे मैं नॉर्मल लगता था, अच्छा थ्राइविंग, वो था जिम स्पेस में, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें मूवमेंट में आना पड़ता है, तुम अपनी सांसों के साथ में हो तो वेट लिफ्टिंग करते हुए। और इसलिए मैं करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा, फुटबॉल खेलता रहा, पागलों की तरह करता रहा, और समाज से मैं बस जूझता रहा, बस स्ट्रगल चला मेरा बहुत लंबा। और मैं खुद को ढूंढ रहा था कि मैंने बोला अरे, अब इससे पहले तक मैं खुद को जानता था मैं कौन हूँ, अब मैं अपने आप को पहचानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ। और शायद मैं इस बात को इसलिए नोटिस कर पा रहा हूँ आज, क्योंकि आज मेरे जीवन में क्लैरिटी है, टचवुड। और मैं खुद से एक मेरा खुद से गहरा बॉन्ड है जो डेवलप हुआ इतने सालों में। स्लोली स्लोली वो डिवाइन साइट डेवलप हुई है। तो जब वो डिवाइन साइट पीछे मुड़ के देखती है ना, तो हमें अपना दिखता है कि मैं कहाँ नीचे गटर में गिरा पड़ा था यार इतने सालों से। और तब दुख लगता है, और वो दुख के साथ में बहुत ग्रैटिट्यूड भी आता है, ऐसे कोई बुरी फीलिंग नहीं है। और खुद पे प्राउड भी होता है, यू फील लाइक सेइंग कि मैन आई हैव कम अ लॉन्ग वे। बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं और उठते नहीं है, और मैं उनमें से हूँ कि जो गिर के घूम के वापस अपने आप को ढूंढ के री इन्वेंट कर पाते हैं या फिर कर पाए हैं। और ये मैंने नहीं किया है, मैं सिर्फ अपने ब्लेसिंग मानता हूँ, पता नहीं कौन से जन्मों की है, ये मेरे फेथ ने किया है, सिर्फ फेथ, नथिंग कैन डू, आई एम इनकेपेबल। इट्स अ मैजिक एंड मिरेकल ऑफ फेथ। पीपल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मिरेकल ऑफ फेथ, दिस इज़ द मिरेकल ऑफ फेथ। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ईजी मैन। एनीवे गाइस, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे खाना भी बनाना है, बहुत लेट हो गया, मेरी आंखों में नींद भी चल रही है, मैं चश्मा भी उतार दिया था ताकि मेरी आंखों से ग्लेयर ना हिट हो। चश्मा पहन लेता हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ गुड नाइट, एंड see you guys. I hope this podcast is uploaded smoothly and you guys enjoy it. Love and peace to each one of you. Bye.